Hello, good afternoon. Today we are here for anthropology optional. First of all, my name is Ganesh. I gave 6 mains. I also given mains in anthropology. तो उसमें मुझे 270 plus marks है. तो obviously, and I have experience in this field 7 to 8 years teaching. कि anthropology optional. Anthropology लेना चाहिए. तो बेसिकली स्कोरिंग क्यों रिसेंटली आपने देखा रहेगा कि जो जो स्टूडेंट्स है अदर ऑप्शनल यानी जैसे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स है they are shifting towards anthropology. In last 5 6 years, the marking and scoring in anthropology is relatively easier as compared to other optional. Even if you look at the sociology, geography, they are also the students are not scoring very good marks. Even they are scoring, but scoring 240 to 250 in easier way. It's relatively easy for anthropology as compared to the other option like sociology, then any science subject like engineering subject. So anthropology basically is a very scoring, and the moreover it's a very simple subject because it's a very diverse and much more interesting subject. Diverse means it include different aspects like it's include human evolution, it include human evolution, then cultural evolution, then genetics. Everything is there in society, and even anthropology is very helpful in GS also. GS in society, the all the aspect of the society section of the GS paper one that is covered in anthropology. Even that will help you in the ethics also and essay, स्पेशली ऐसे ऐसे एक ऐसे तो सोसाइटी के ऊपर रहता ही है, सोसाइटी कल्चर के ऊपर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेना चाहिए. सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी, if we look at the other subject, but in anthropology the resource availability is really good because there are very few books that you can just refer that and you can easily score 240 250 or 260 marks. And after that, for value addition, you just have to need the case studies. यानी यू हैव टू बी करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी केस स्टडी रहेंगे वो हम एक्स्ट्रा करेंगे. तो ऑब्वियसली यू कैन जंप फ्रॉम 240 और 250 टू 280. सो दिस इज द बेसिकली. एंड सेकेंड थिंग, द tribal and scheduled tribes, tribal things, that data is not regularly changing because we have to depend on the government sources. So last report, which report was there for tribals? Latest report, tribal related report, Zaza report that came in 2014 around. So before that, the Buria report and all that. So there is no latest report. So whatever data we have to refer from this and some the annual report of the tribal affairs. So basically the resources also limited, but they are more comprehensive. So this is the reason you should go for the anthropology, and it's a very interesting subject. Then how we are going to approach the anthropology. तो anthropology कैसे हम कवर करेंगे. बेसिकली अभी हम कैसे next 3 4 months till 15th of December, our target is 15th December, we have to finish anthropology properly. So the basically time management, it's very crucial because till December 15 or end of December you have to finish your GS mains and optional. So once you did that, then definitely from January you have to go for the preliminary. And if you do till December this GS and optional, then definitely it's going to you will get an age. And the moreover next year, next mains 2025 mains, there are only 89 days between prelims and mains, so very less time. So you have to finish optional by 15th of December or maximum end of December, and even including GS also, GS mains. So total hours, how many total hours you put in studies, including classes, 9 to 10. ठीक है, 9 to 10 hours, 9 to 10 hours. So you have to divide your time. The first thing, the first time is, and for anthropology what I'll need your 5 or 5.5 hours, 5 से 5.5 घंटे I'll need. So you can including classes, so you will definitely you will left with 4 and 4.5 hours, or maybe after few days, after 10 15 days you will be comfortable with the anthropology because most of the basic things will be done, so you will familiar with the terms. So after that
definitely the time in anthropology will decrease around 4:30 and 5 hours, maximum 5 hours. And after that, you have to go for the GS mains. So next till 15th of December, you have to finish optional plus GS. Then come the how we are going to approach. So basically, we will going for the macro schedule, then meso level, and then ultimately micro schedule. So what is basically macro schedule? Macro schedule means the bulk targets. Meso yani medium level target, and micro means daily targets. Like the first things, ki macro schedule. So macro schedule yani basically we are going to ki particular one target. Like introduction. The first is definitely going to be the introduction. Anthropology kya hai, meaning kya hai, scope kya hai. After that, first micro target will be anthropological theories. So theories mein we are going to discuss all the theories. So before that, we will discuss this micro schedule. What is going to be the micro schedule? And then we'll discuss the macro schedule and the whole syllabus. So micro schedule, how much you are going to put every day? 10 hours. 10 hours you are going to put in your studies. So how much going to be the for class? There will be 4 to 5 session every week, and that will be like 2 hour or 2.5 hours. So that 2 hour and 2.5 hours, how we are going to approach? तो हम इसमें क्या करेंगे? तो जो लेक्चर रहेगा, that will start after that. We'll discuss all the topics, whatever the discussion topics will be there. Like if we tomorrow we are going to discuss introduction of anthropology, scope and development. So we'll discuss all the aspects. After that, the end of the class, we are going to have an interactive session. What you understood, and in during the course of time and whole the lecture, हम बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे कि क्या समझ में आया है. Because interaction is most important aspect. Otherwise you will just listening and बस चल रहा है, तो वैसे नहीं होना चाहिए. तो हमें करना क्या है? तो बेसिकली कि इंटरएक्टिव एंड एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए. पैसिव लर्निंग नहीं. पैसिव लर्निंग यानी बस सुन रहे हो. सुनना तो कहीं पे भी सुन सकते हो, बट जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक डाउट नहीं पूछोगे, जब तक क्या समझ में आया नहीं बताओगे, तो डेफिनेटली तो लॉन्ग लास्टिंग ये रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी. तो हम वो करेंगे. फिर एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट, देयर विल बी वन question, and that question will be based on PYQ mainly. So this will be our thing. After that, these are the two and 2 से 2.5 घंटे. After that, what you have to do? Obviously, take half an hour break. After that, you just need maximum 1 hour or 1.5 hour to revise whatever you studied in class. So you will be having the notes, whatever you are going to write in class. Other some handouts will be provided, and detailed note also provided. After that, you just have to read that and make your handwritten notes. So after making handwritten notes, you just have to write the one answer. एक आंसर लिखना है. तो आंसर लिखना है, बेसिकली क्या करना है? आंसर लिखना है कि वी स्टडीड इन क्लास, पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया. उसके बाद हमने क्या किया कि उसको रिवीजन की. एक क्लास में भी रिवीजन हो गई, एक क्विक रिवीजन एंड में 10-15 मिनट्स में. आफ्टर दैट रिवीजन, ओन रिवीजन हो गई, ओन रिवीजन. आफ्टर दैट आंसर राइटिंग यानी एप्लीकेशन पार्ट. हियर वी आर डूइंग एप्लीकेशन पार्ट, यानी जो भी अंडरस्टैंड किया है, वॉट एवर यू अंडरस्टूड, दैट यू आर पुटिंग इन योर आंसर्स. सो बेसिकली द answer writing is also important. So after end of then this is first day is over. Then next day what you have to do? Before coming to the class or before taking lecture, you have to revise whatever studied yesterday. Just 10-15 minutes quick revision, just terms you have to revise. And after that, in class we are going to discuss that one question whatever we discussed, and previous day's revision in 10-15 minute. Okay, understood? तो basically what we are going to do, पहले तो हमने understand कर लिया, then quick revision हो गई end of the lecture, then खुद की own revision हो गई. own revision होने के बाद answer writing किया, और कितना time? 2.5 hours for lecture, including there will be quick revision. After that, you are going to do revision. That will be revision and PYQ, that you will maximum require 2 hours. Max 2 hours is more than enough. And next day morning, 10-15 minutes before the class. And while in class, we are going to discuss the whatever question provided,
and you'll going to write, add points in your answer. So ultimately, we are doing 3-4 revisions, and this is like a micro schedule. And a daily basis, we are going to do this. After 4-5 lectures on Friday, we're done with the session. Whatever the same process you have to follow, and then on weekends, what we are going to do on weekends, you will going to get 2 to 3 questions, and that will be advanced questions, because we have to cover everything and interlinkages of the topics and whatever the topics we discussed in that week. So interlinked question will be there. So ultimately, how many questions will be having after the 1 week? 4 to 5 daily questions, and on weekend 2 to 3, and almost 9 to 10 question is definitely going to be there with you every week. So this process is going to till what time? Till 15th of December. So 15th of December पे आपके पास कितने क्वेश्चंस होंगे? More than 300-400 questions, and your own handwritten questions. And next important thing is not only handwritten, you are having the model answers, because that answers will be like we are going to discuss, we are going to add points, we are going to add current affairs into it, we are even going to discuss one question is there, if consider what is anthropology or how anthropology developed. So in that, if some different dimensions will be there, so we are going to add what is action anthropology, what is applied anthropology. If applied anthropology is something there is in current, so we are going to add that. So ultimately, you are having all the PYQs, almost 400, 300, 400, and that is more than enough, because obviously एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बहुत सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो हमें वो थीम्स कवर करते जाने, तो अल्टीमेटली वी विल बी हैविंग 300 to 400 ओन क्वेश्चंस, एंड वन क्वेश्चन बैंक will be ready with you. After that, this will be our micro schedule. And then meso schedule means on weekend we have to do revision, whatever studied whole week. And that will be like it, because you're doing 3-4 revision daily. So ultimately on weekend, you just have to flip the pages and write 2-3 answers. And after that, whenever the section will cover and a macro schedule, and a macro target one क्या है? Anthropological theories. तो जब anthropological theories cover हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो there will be test. Sectional test will be there. There might be a 2 sectional test on anthropological theory, and that will be like 125 marks. So basically, even in that also, you are going to get almost 10-12 questions. So ultimately, descriptive, because option is descriptive now. So descriptive test will be there, and then what will be after this first micro target will be over. So how much questions will be? The theory will require 20 days or 20 odd days, because one of the important and aspect of the anthropology, because theories are very important aspect. Why? तो that will क्या करते, वो वैल्यू एडिशन करते बाकी आंसर्स के लिए भी वैल्यू एडिशन करते हैं थियोरीज. तो यानी सोशो कल्चर में यू हाउ टू कोट थिंकर्स, विदाउट कोटिंग थिंकर्स you can't score more marks. So theories, basically there will be direct questions, almost 40 or 45 marks question will be definitely there, going to be around a direct question from theories. But the value addition on every question in socio-cultural, in other areas, this is the important value addition. You have to quote the thinkers. So after the first macro target, you will be definitely going to get 50-60 marks here, and you will be having the whatever the questions we have this almost 15-20 days going to required for the anthropological. So all the questions, all the things will be covered. So basically you will be done with the after first macro target. There also you will get a 2-3 days off, so you can revise whole theories and interlink the theories that we are definitely going to do in class also. But again, you have to do on self-study. After that, there will be test, and a test discussion will be there, and that test evaluation will be done by me. Even we are going to done the test evaluation in person. So that will be like कि वो हेल्प रहेगी कि ये चेंज कर सकते, वो चेंज कर सकते, यहाँ पे ऐसे, यानी पर्सनलाइज वो इवैल्यूएशन होगा. देन कम द नेक्स्ट कि बेसिकली कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है. थियरीज आपको समझ में है. थियरीज में क्या है कि इवोल्यूशन से लेके पोस्ट मॉडर्निज्म तक, उसमें स्ट्रक्चरलिज्म भी आएगा, फंक्शनलिज्म, देन हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म जो बोअस ने दिया था,
तो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस देन कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। अभी तक तो हमने बस कैसे करने हमें, तो अभी सिलेबस के साथ साथ हम क्या यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी लेमन टर्म में कि सब्जेक्ट क्या है बेसिकली, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, आपको क्या लग रहा है एंथ्रोपोलॉजी के क्या बेसिक स्टडी एग्जैक्टली मैन। एंथ्रोपोज मीन्स मैन एंड लोगोस मीन स्टडी और साइंस, स्टडी और साइंस यानी बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ मैन। साइंटिफिक स्टडी यानी क्या, बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यानी मैन का स्टडी तो सोशियोलॉजी में भी होता है, बट विच पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजी में कौन से पर्सपेक्टिव से होता है, जस्ट सोसाइटी की ह्यूमन बींग एक सोसाइटी का पार्ट है, देयर ग्रुप ऑफ मेंबर्स। देन मैन का स्टडी मेडिकल में भी होता है, तो वहां पे पर मेडिकल जेनेटिक्स पर्सपेक्टिव। देन मैन रिलेटेड स्टडी पॉलिटिकल साइंस में भी, वो बस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में, यानी बेसिकली द एंथ्रोपोलॉजी में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगा। मैन यानी मैन विल बी स्टडीड इन टोटल होलिस्टिक वे से। तो यानी बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एंथ्रोपोलॉजी की ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, यानी ह्यूमन कहां से, प्राइमेट से इवॉल्व हुए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, देन अभी कौन है हम, होमो होमोसेपियंस। तो हम वो कल्चरल इवोल्यूशन भी देखेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन अलोंग विद दैट कल्चरल इवोल्यूशन। कल्चरल इवोल्यूशन पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आयरन एज है, सो ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। दैट्स व्हाई एंथ्रोपोलॉजी इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक। एंड अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, द जब भी ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है, जो भी एनाटॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि कल्चरल इवोल्यूशन भी हो रहा है, और दोनों इंटर डिपेंडेंट है। यानी जब हम फायर का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई फायर की, तो क्या हुआ, उसके बाद हम कुक फूड खाने लगे, कुक फूड खाने लगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आ गए। उसके बाद जब पहले हम इरेक्ट पोस्चर नहीं था, तो उस हिसाब से वो जब इरेक्ट पोस्चर हुआ, अपोजेबल थंब आया, तो हम टूल मेकिंग स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद द जॉ लाइन, तो उस हिसाब से ईटिंग हैबिट जैसे चेंज हो गई, वैसे जॉ लाइन द टीथ वो चेंजेस हो गए। तो यानी बेसिकली कल्चर जहां जैसे जैसे इवॉल्व होते गया, वैसे वैसे ह्यूमन इवोल्यूशन भी चेंज होते गया, और ह्यूमन इवोल्यूशन से कल्चरल इवोल्यूशन भी चेंज होते गया। यानी बेसिकली कल्चरल इवोल्यूशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन आर इंडिपेंडेंट, interdependent. That's why the anthropology is a very interesting subject, because here we are going to discuss about this thing, फिजिकल एंथ्रो, कि कैसे हम इवॉल्व हुए, उसी के साथ साथ हम कल्चरल, और ये पार्ट जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी जो हम कल्चरल इवोल्यूशन देखेंगे, उसमें क्या क्या रहेगा, तो उसमें सब ये पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसे हम अभी के करंट सोसाइटी तक पहुंचे, यानी प्री हिस्टोरिक सोसाइटी से अभी के सोसाइटी कैसे पहुंचे, तो वो कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। तो ये वाला पार्ट पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब कहाँ पे, ये तो अपने एंशियंट इंडिया में भी है। एंशियंट, और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है उसके रिलेटेड कि ये साइट कहाँ है, वो साइट कहाँ है। तो बेसिकली ये प्री में भी हेल्प करेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हॉलिस्टिक। और इसके साथ साथ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या आता है सारा, अपने सोसाइटी कैसे वर्क होता है, नहीं जो सोशियोलॉजी का पार्ट है वो भी इधर है, सोसाइटी कैसे वर्क होता है, मैरिज कैसे होते हैं, तो मैरिज के टाइप्स क्या है, तो उसके बाद किनशिप आता है, फिर मैरिज में क्या क्या आता है, मैरिज में कि मैरिज के टाइप्स क्या है, कि मैरिज कैसे हुआ, अचानक एक दिन शादी तो नहीं हुई, कि जो अभी का सिस्टम चल रहा है, अभी भी देर इज लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन सम कंट्रीज, देर आर सेम सेक्स marriages are allowed. If you go in some tribal society, there are already that marriages are allowed. So basically we are going to study the evolution of marriage, अभी का सिस्टम पे हम कैसे आ गए। उसी के साथ मैरिज पेमेंट्स रहेंगे, कि मैरिज पेमेंट यानी डाउरी, पर वो डाउरी यानी बेसिकली इज इट अ गुड और बैड, तो कौन देता है डाउरी, लड़की वाले देते हैं, ठीक है। तो बट इन ट्राइबल सोसाइटीज, इन प्रिमिटिव सोसाइटीज, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली ब्राइड प्राइज होती है। ब्राइड प्राइज यानी हाँ, कि ग्रूम जो रहेगा वो ब्राइड को देगा, ब्राइड फैमिली को। क्यों ब्राइड फैमिली, क्योंकि एक मेंबर इधर आ रहा है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि ये एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है कंपेयर टू जो डाउरी सिस्टम। एंड डाउरी सिस्टम मेनली कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वही साउथ एशिया की, इन आवर सोसाइटी डाउरी सिस्टम, एंड दैट इज मोस्ट इविल। एंड अभी इन आवर ट्राइबल सोसाइटीज आल्सो देयर वाज अ this kind of system, but now that is gradually replacing with dowry, so that is most exploitative. So these things also we are going to discuss in
एंथ्रोपोलॉजी. सो दिस इज सोशो कल्चरल. सो दिस कल्चर की कल्चर क्या है, कल्चरल डिफ्यूजन क्या है. कल्चर डिफ्यूजन यानी क्या होता है कि कल्चर कैसे डिफ्यूज हो रहा है. देन दिस सोसाइटी का नेचर क्या है, सोसाइटी कैसे वर्क होती है, कल्चर और सोसाइटी कैसे इंटरलिंक्ड है, सिविलाइजेशन क्या है, ऑल दीज एस्पेक्ट. देन मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, किस बार्टर, कैसे बार्टर सिस्टम से अभी करंट, अभी करेंसी चलती है तो वो कैसे, अभी तो नए नए डेवलपमेंट भी हो रहे हैं. देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या लगता है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में रिपब्लिक होगा? क्यों नहीं होगा? प्रिमिटिव सोसाइटी भी रही तो वहां पे भी डेमोक्रेसी थी. तो यानी प्रिमिटिव सोसाइटी एक्चुअली, दिस इज द important aspect कि we consider the primitive societies are backward, but that is actually wrong. They are more advanced in particular aspects. We are just looking from our perspective. इथनोसेंट्रिज्म यानी बेसिकली हमें लगता है कि हमारा कल्चर सबसे बेस्ट है, बट वी हैव टू लुक देम फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. सो देयर आल्सो रिपब्लिक आर देयर, देयर आल्सो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी इज देयर. देयर आर सो मेनी एग्जांपल इन प्रिमिटिव सोसाइटीज. देन रिलीजन. रिलीजन में तो कि व्हाट वी आर गोइंग टू, कि क्या, किस कौन से टाइप के रिलीजन होते हैं. तो एनिमिज्म क्या होता है, क्योंकि हम अभी तो हिंदू, मुस्लिम, ये तो नॉर्मल रिलीजन हो गए. उसके पर ये रिलीजन अभी तक इवॉल्व कैसे हुए? मोनोथीइज्म मुस्लिम में है, हिंदू में पॉलीथीइज्म. तो वो कैसे यहां तक कैसे पहुंचे? तो उसका कुछ, उसके पीछे कुछ रीजन रहेगा. इवन इन इन हिंदुइज्म वी वर्शिप नेचर के, ये भी सन गॉड, ये भी. तो वो कहाँ से आया? तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ रिलीजन आर इवॉल्व. इवन सम ट्राइब्स व्हाट डे, वो किसकी यानी पूजा करते हैं? नेचर. नेचर में भी एक पर्टिकुलर एनिमल भी रहता है उनका. यानी कुछ ट्राइब में स्नेक्स रहता है कि देर द टोटेम, कि उसकी ही पूजा होगी. उनका पॉपुलेशन कम हुआ तो बेसिकली देर इज समथिंग डेंजर फॉर देम, कि वो ऐसे कंसिडर करते कि उनका पॉपुलेशन यानी इंटैक्ट रहेगा तो उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं वो अच्छा सोसाइटी वर्क हो रही है. आफ्टर दैट द स्पिरिट. स्पिरिट को भी मानते हैं, ठीक है. वो कंतारा मूवी में स्पिरिट को मानते हैं, यानी बेसिकली उनके जो दैव है वो स्पिरिट है. सो अगेन देन कम द कल्चर, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन. इसमें लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जब तक इंटरेक्शन कैसे होगा, यानी एक्सचेंज, वे ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस. एंड देन फाइनली रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी क्या क्या मेथड्स है रिसर्च की, कैसे स्टडी किया करते हैं डिफरेंट डिफरेंट की इंटरव्यू लेके, या कैसे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज आर स्टडी, दैट is included. So this is will be our second macro target. After this, we will be having one sectional test again. So this is the most important aspect, and all these aspects. If you look at our GS1 syllabus, there is a culture, there is a society. They are even asking many different about the tribes and other aspects. So these are definitely going to help you there. And in society, I think around 80 to 85 marks they are asking. So definitely you will easily score you without putting any extra efforts. Then come the next is third की प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी. प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी यानी कल्चरल इवोल्यूशन बेसिकली, यानी पैलियोलिथिक, जो वॉट एवर वी डिस्कस कि क्या क्या है, कि मेसोलिथिक क्या है, नियोलिथिक क्या है, हाउ वी डेवलप फ्रॉम स्टोन एज टू करंट आयरन एज, ठीक है. आणि इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा. एंड आफ्टर दैट की इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर इन पेपर टू. इंडियन कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुई है. तो ऑल दीज एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. यानी बेसिकली द पेपर 1 पार्ट इज 1.8, 1.9 एंड पेपर 2 पार्ट इज 1.1 and 1.3. So we are going to study this combinedly. So less time will required, and you can properly revise properly, because the Paleolithic is in world also. We have to study world Paleolithic. We have to study Indian Paleolithic also. So that will go simultaneously. So you can comprehend all the aspect properly. And then after that, here also going to be the one test. And then the important aspect. These are the one of the scoring area. That is study of primate. प्राइमेट एंड ह्यूमन इवोल्यूशन की इमर्जेंस ऑफ अभी का मैन कैसे इमर्ज हुआ है, कि अभी जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे आया. तो उसमें हम तो डिफरेंट डिफरेंट सब देखेंगे. फाइलोजेनिक स्टेटस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हर मैन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे नर्मदा मैन था, सिवापिथेकस कहाँ था. देन उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे एनाटॉमिकल चेंजेस होते गए.
क्या क्या चेंजेस होते गए और उसी के साथ साथ क्या क्या कल्चरल इवोल्यूशन भी होते गए और दोनों कैसे इंटरलिंक्ड है। तो इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो इरेक्टस यानी स्ट्रेट स्पाइन आ गया, देन निएंडरथल मैन, देन रोडेशियन मैन, देन होमोसैपियन। तो निएंडरथल मैन क्या है रिलेटेड, तो डिबेट भी है कि वो एग्जिस्ट, अरे वो उसका वो अलग से है या होमोसैपियन के लिंक में है। तो ऑल दिस एस्पेक्ट एंड आफ्टर दैट कि इंडिया में जो स्पेशल यानी लोकलाइज जो मैन है दैट इज रामापिथेकस, सियोपिथेकस एंड नर्मदा मैन, दिस थ्री थिंग। एंड वन ऑफ द 10 markers definitely UPSC alternate year they ask from this Ramapithecus, Siopithecus, Narmada man, 100% they ask alternate year. So this will be the human evolution and whatever before we are whenever we are going to discuss this primate and human evolution, before that what we are going to do, उससे पहले हम ये करने वाले हैं कि सारा एनाटॉमी यानी क्या है वो पहले स्टडी करेंगे, यानी बेसिक बायोलॉजिकल थिंग्स एनाटॉमिकल कि फीमर क्या है, लोअर जॉ क्या है, तो ऑल दिस एस्पेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी हो जाएगा और कंपेरेटिव स्टडी हो जाएगा। तो दिस वे वी आर गोइंग टू, यानी वी आर नॉट जस्ट going to start Australopithecus. Before that, we are going to properly do the anatomy. So easily you can understand, because here, if question comes, if you know the points, you can score as many as marks. So this is one of the important area. Then come the physical anthropology. Here also we are not just going to start the biological basis of life or human genetics. Before that, we are definitely going to discuss about the basic cell, whatever the biology things that is in NCERT also there. So these things we are going to discuss. After that only, you can अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब तक पता ही नहीं है कि क्या है चीज, क्रोमोसोम क्या है, सेल क्या है, तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग यू कैन इजीली अंडरस्टैंड देन द सिलेबस, देन ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी इनहेरिटेंस क्या है। तो ऑल दिस एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देन इपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी ये क्या है, तो हाउ इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कैसे ह्यूमन पे, यानी आपने देखा रहेगा जैसे जो पहाड़ी लोग रहते हैं उनकी हाइट रिलेटिवली स्ट्रेचर छोटा रहता है, ट्रॉपिक्स वाले थोड़े हाइटेड रहते हैं, और कलर ट्रॉपिकल का कलर थोड़ा सा डार्क रहता है। सो ऑल दिस एस्पेक्ट इन बेसिकली हु डिक्टेट द इकोलॉजी, द इन्वायरमेंट डिक्टेट द, तो ऑल दिस एस्पेक्ट एंड दैट बेसिकली लेड टू द अडेप्टेशन कि वो पर्टिकुलर एरिया में अडेप्ट हो जाते हैं। So all these aspect we are going to discuss. Then application of anthropology. This is one of the important aspect. More question are coming from this area. So whatever studied here, we are going to just apply here. So there 10 marker or 15 marker question UPSC last 3-4 years are at least 2 to 3 question are asking from this area. So this will be the physical anthro, and ultimately this will be the end of paper 1. So paper 1 done होने के बाद, so there will be the comprehensive test, one comprehensive test. So, and I think paper 1 will require 60 to 70 days, 2 months. Because once you get the paper 1, paper 2 is very easy. Because the important aspect and जो technical चीजें हैं, we are already discussed in paper, along with the paper 1 and जो भी initial units है 1.1, 1.2 of paper 2. So we are directly going to start with paper 2 from unit 2, because we are already covered. Here we covered 1.2, here we covered 1.1, 1.3, this evolution of Indian civilization, ethnography, ethnoarchaeology. So the combinedly. So ultimately now we are come to the macro target 6, that is paper 2. And paper 2, there are many time the teacher don't give much time for this paper 2, but we are going to give 40 odd days for paper 2, because paper 2 is much more scoring as compared to the paper 1. The students are scoring around 170, even 180 marks also scored in paper 2, because it's very easy compared to here. You just required the contemporary example case studies. Once you have the case study and you understood the things, you're done. The demography, there will be the demography and what is the demographic structure, what is linguistic and कितनी linguistic diversity इंडिया में, रेस कौन से है, तो ऑब्वियसली द्रविडियन है, निग्रोइड है,
So all these aspects. So we are going to discuss all this thing in demography. After that, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी कैसी वर्क होती थी आणि आश्रमा. कितने आश्रम है? 4 आश्रम. पुरुषार्थ है, आश्रमा, पुरुषार्थ यानी जो भी कर्मा, ये सारी चीजें आएगी. तो वो पुरुषार्थ और आश्रमा यानी बेसिकली दिस थिंग यू नो ऑलरेडी, बट we have to just put it in proper diagram, proper flow chart, so you can score here more marks. Then caste system. Caste system is obviously very important, and even caste system is asked in GS paper 1 also. So caste system में कि caste system होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. The debate of गांधी जी एंड अंबेडकर जी. तो दैट डिबेट की कास्ट सिस्टम का गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, अंबेडकर जी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे. सो ऑल दिस एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू. एंड कास्ट सिस्टम अभी कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं, उसमें भी कास्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुई. अभी की कास्ट सिस्टम क्या, अभी क्या चल रहा है, संस्कृताइजेशन, यानी कि लोअर कास्ट दे आर इमिटेटिंग द हायर कास्ट. तो वो सारी चीजें चल रही. तो कास्ट सिस्टम होनी चाहिए. तो कास्ट सिस्टम किससे आई है? वर्ना सिस्टम से. तो वर्ना यानी क्या था? तो वर्ना एक्सप्लॉइटेटिव था क्या? वर्ना सिस्टम इज बेस्ड ऑन योर क्वालिटीज, एंड इफ यू आर टीचर देन you are higher varna. So that is based on your profession. If you are in that particular profession, then you are in that hierarchy. Then come the nature man spirit complex, sacred complex, यानी जो भी कि कैसे मैन हार्मोनी में रहता है नेचर के साथ. तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यानी जैसे कंदरा मूवी का एग्जांपल दिया था, नेचर की मैन और स्पिरिट यानी उन्होंने जो भगवान माना, तो जो दैव माना है, तो यानी बेसिकली स्पिरिट, मैन एंड नेचर. तो स्पिरिट कब एंग्री होता है? जब उनके लोगों को किसी ने परेशान किया. उसके साथ साथ नेचर जब ये हो जाता है कि वहां पे कोई हार्म कर रहे नेचर को, तब. तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है. नेचर मैन स्पिरिट एक कॉम्प्लेक्स है, तो वो हार्मोनियस रिलेशन में रहते हैं. तो ऑल दिस एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, यानी जो भी रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या हुआ. तो ऑल दिस एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अलग डिफरेंट रिलीजन. देन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे एम.एन. श्रीनिवासा है, घुरे है, तो ऑल दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन विलेज स्टडी. तो अभी के विलेजेस कैसे हैं, यानी कैसे इवॉल्व हुए. विलेजेस भी इवॉल्व हुए. इफ यू लुक एट द कोई गांव देखोगे तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही तो एक तो टेम्पल के अराउंड विलेज डेवलप होना चालू होता है, या कोई इंपॉर्टेंट जगह रहेगी कि जहां पे लोग रेगुलरली मिलते थे, तो वहां से अराउंड विलेज बिल्ट होना. तो इंडियन विलेज कैसे स्ट्रक्चर है, क्या है, ऑल दिस एस्पेक्ट. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइनॉरिटीज यानी कौन से माइनॉरिटीज है, हाँ, यानी कौन से टाइप के माइनॉरिटीज है कॉन्स्टिट्यूशन में. रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. सो उनके प्रॉब्लम्स क्या है, क्या नहीं, वी आर गोइंग टू डिस्कस. मुस्लिम से 6 रिलीजन है टोटल. देन कम द संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. संस्कृताइजेशन आई ऑलरेडी टॉक की, इमिटेटिंग. वेस्टर्नाइजेशन यानी वेस्टर्न को फॉलो करने का. मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. सो ऑल दिस एस्पेक्ट इन द पेपर 2. देन नेक्स्ट पार्ट इज लास्ट, that is the most important and very easy, that is tribal India. The most of the aspect you know tribal India. अभी ट्राइबल के प्रॉब्लम में अभी बोलूं कि कोई आंसर्स लिखो कि why poverty in tribal India, म्हणजे ट्राइबल्स क्यों है poverty इनमें. इफ यू गेट, हाँ, तो अभी आंसर लिखने को बोला जाए तो आप लिख पाओगे इंस्टेंटली ऑब्वियसली, पर वहां पे फिर क्या लगेगा, वहां पे लगेंगे एग्जाम्पल्स, यू नीड फैक्ट्स, यू नीड द डेटा. उसके बाद केस स्टडीज लगेंगे कि क्या एक्चुअली पोवर्टी है. उसके बाद जो सजेशन, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हुए, उसके बाद सजेशन. और इवन कि अभी उन्होंने यूपीएससी ये भी पूछती है कि पोवर्टी वाला पूछ रहे तो पोवर्टी का बस यहाँ का नहीं पूछेंगे कि ओवरऑल ट्राइब्स का. दे विल आस्क नॉर्थ ईस्ट ट्राइब, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स, सदर्न ट्राइब्स. सो दे गो इन स्पेसिफिक. And then you need the case studies, the example, because anybody can write. So this is the thing. Then in tribal India, what we are going to tribal situation. कि tribal की क्या situation है, ठीक है, and problem of the tribal communities. Along with that, we are going to discuss the everything and displacement, rehabilitation, tribal policies, and even the SC क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, एसटीज क्या प्रॉब्लम, ओबीसी और उनके लिए सेफगार्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी वी आर गोइंग टू डिस्कस.
एंड ये सारा चीजें तो हमें पॉलिटी में भी हेल्प हो जाती है। हाँ, एवरीथिंग, यानी बहुत सारे सेफ गार्ड्स कि शेड्यूल ट्राइब्स को ये करने के, फिफ्थ शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल है, तो पैसा आया हुआ है, तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोमेडिक ट्राइब्स, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, ऑल दीज एस्पेक्ट्स। आफ्टर दैट की ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इंडिया में, कि ट्राइब कैसे डेवलप हुए, यानी हम इंडिपेंडेंस क्या बिफोर इंडिपेंडेंस भी देखेंगे कि कैसे डेवलप हुए, और मेन हमारा इंपॉर्टेंस रहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बेसिकली क्या, कौन सी पॉलिसी थी, नेहरूज पंचशील, ट्राइबल पंचशील, तो ये पॉलिसी कैसे डेवलप हुई, और हाउ फ्रॉम ट्राइबल पंचशील देन डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट, एंड ट्राइबल सब प्लान आ गया, देन पीवीटीज को सेपरेट किया, अभी कितने पीवीटीज है, ठीक है, तो पीवीटीज को सेपरेट किया। उसके बाद वहां से आगे कैसे ट्राइब डेवलप हुए, हाउ एक्चुअली वी आर, हाउ बेसिकली, कि अभी जो ट्राइबल प्रॉब्लम फेस करते, तो वो कैसे अभी के पॉलिसीज इवॉल्व हुए। इनिशियली दे आर कंसिडर एज आइसोलेटेड, नाउ दे आर integrated in our society. So all these aspects we are going to, or even in tribals, इन एंथ्रोपोलॉजी, कि जो अभी जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, मणिपुर वाला, तो वो क्यों हो रहा है, तो बेसिकली उसका बेस रीजन तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट ही है वो। तो ऑल दिस, हाँ, तो ऑल दिस एस्पेक्ट, यानी वो भी हम इंटरनल सिक्योरिटी वाली भी कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑल this, and after this thing ki definitely there will be test, and this will be the end of our syllabus, and after that you will get 6, 7, 8 days to revise and go for the comprehensive test. So our target is by 15th of December we have to finish, and after that we'll be having test, comprehensive test, ठीक है। So this is basically we are going to approach. So next comes the, कि हम टोटल अभी इसमें क्या कैसे रिवीजन करें। एक तो हमने माइक्रो शेड्यूल में देखा कैसे मेसो शेड्यूल में रिवीजन हो रहा है, आफ्टर दैट कब रिवीजन होगा, दैट सेक्शन, दैट मैक्रो सेक्शन विल बी डन, देयर विल बी रिवीजन 2-3 days एंड देन टेस्ट। सो सिमिलरली यू आर गोइंग टू फॉलो एवरी मैक्रो टारगेट, ठीक है। तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी क्या है वो समझ में आया, कि पूरा सिलेबस में कुछ इशू, कुछ डाउट, तो यानी कैसे हम अप्रोच करने वाले हैं, कैसे डेली आंसर राइटिंग होगी, क्या कैसे रहेगा, वो समझ में आया। तो नेक्स्ट कम द हाउ टू मेक नोट्स। हम नोट्स कैसे बनाएंगे, डेली बनाएंगे, क्योंकि हमारे अल्टीमेटली वीकेंड पे हमारे पास 2-3 पेज वाले नोट्स होने चाहिए। हम कैसे कि क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड क्लास में आप वॉट एवर रनिंग नोट्स बनेंगे, उसके साथ साथ आपको कुछ हैंडआउट्स या पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी, डिपेंड ऑन द टॉपिक। तो उसके बाद आपके एंड ऑफ द लेक्चर की जब घर जाओगे रिवीजन करोगे, तो जो हैंड रिटन रनिंग नोट्स बनाए, तो वो भी हम प्रॉपर एक, अभी ये पेज है A4, वन साइड 3/4, 1/3 पेज खाली रहेगा, और बीच बीच में ऐसे लिखते जाओगे, और एंड में ये वाला पोर्शन भी खाली रहेगा, कि जब हम कुछ ऐड कर रहे हैं आगे जाके, कोई करंट अफेयर्स वाला पर्टिकुलर जगह पे आ गया, तो वो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे नीचे जगह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कहीं और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई, कुछ अच्छा केस स्टडी मिल गया, तो दैट वी आर गोइंग टू ऐड। सो बेसिकली तो हैंड रिटन नोट्स अच्छे बन जाएंगे, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मेंस, क्योंकि बुक्स ले हुए या प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, रिवीजन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट 89 days नेक्स्ट ईयर, 89 days, यानी कि टाइम जस्ट 2.5 months, यानी ऐसी टाइम चला जाता है, समझ में नहीं आता कि जस्ट अरे प्री हो गई, प्री का रिजल्ट आ गया, एग्जाम हो गई। तो इसीलिए कि रिवीजन के लिए, और एंड में जो हमारे माइक्रो ये डिटेल वाले नोट्स बनेंगे, तो जब एक कॉम्प्रिहेंसिव 4-5 इंटरलिंक टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपके सिनॉप्सिस बने एक एक पेज, वॉट एवर जो सिलेबस में पॉइंट्स है। अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम पे कल्चर क्या था, तो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वेरिएंट क्या है, तो वो बस चार्ट फॉर्मेट में स्कीमेटिक, जो जितने इजीली वी कैन रिवाइज, तो उस टाइप का। उसके बाद अभी मैरिज के टाइप्स क्या है, तो डिफरेंट, देयर आर 8-9 टाइप्स ऑफ मैरिज, तो वो टाइप्स क्या क्या है, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, एक तो कौन सा टाइप है,
उसका डेफिनेशन आ जाएगा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैरिज टाइप्स क्या है उसका इंट्रोडक्शन आएगा, तो वो बस एक पेज में। और वो क्वेश्चन कितने 20 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, या 15 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, या 10 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। पर एंड ऑफ द डे आपके पास बस एक ही पेज के नोट्स होने चाहिए, एक पेज में कवर होना चाहिए वो टॉपिक। तो उससे क्या होगा कि रिवीजन, यानी जो भी 5 डेज मिलते हैं, जब GS 4 हो जाता है, GS 4 के बाद यू गेट 5 डेज ऑप्शनल पेपर, वो 5 दिन मिलते हैं, तो यू कैन रिवाइज एवरीथिंग इन दैट 5 डेज। तो उससे ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली यू विल गेट एज, यू गेट मोर मार्क्स। मार्क्स ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एंथ्रो में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये डेफिनेटली हमें चाहिए, नहीं तो आंसर तो जनरलिस्टिक आंसर कोई भी लिख देगा। यहाँ पे जब हमें ये सारी चीजें रहेगी, डेटा, फैक्ट, प्रॉपर ये रहेगा, तो फ्लो चार्ट्स रहेंगे, स्कीमेटिक्स रहेंगे आंसर्स में, ऑब्वियसली यू कैन इजीली स्कोर 280 प्लस। 280 plus can easily score, and 280 plus is definitely a good score. You can easily get into the list. So I'll show you the students notes. Basically this is the way of acquiring mates, कि कैसे मेट यानी शादी कैसे होती है, कि मेट कैसे चूज किए जाते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल कि हर सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है। मैरिज बाय परचेस, कि ब्राइड को वेल्थ देके, सर्विस देके, देन कैप्चर की कैप्चरिंग की स्नैच करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है। कि फिर म्यूचुअल कंसेंट, कि दोनों ने भी म्यूचुअल कंसेंट से शादी हो गई, तो उसके हमें तो ये एक बार समझ में आ गया। अभी मैरिज बाय सर्विस समझ में आ गया कि सर्विस की ग्रूम क्या करेगा, ब्राइड के यहाँ जाके सर्विस प्रोवाइड करेगा। वेल्थ रहेगी तो ग्रूम क्या करेगा कि ब्राइड की फैमिली को वेल्थ देगा। तो अल्टीमेटली ये सब समझ में आ गया। तो बस याद क्या रखना है, परचेस, सर्विस, मैरिज बाय सर्विस, और उसके इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स और जो स्मॉल स्मॉल डायग्राम्स। अभी जैसे ये है सर्विस, यानी क्या ग्रूम ब्राइड को सर्विस देता है, तो ये छोटी डायग्राम है, बट you how to draw this in exam. Now ultimately what this is, you can UPSC can ask 15 marks question also, or 10 marks question on this, and how much time you will require to revise this once in your handwritten notes रहेंगे तो। हाँ, लेस टाइम। एंड रिवाइज भी क्या करना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी मेड डिटेल नोट्स, आफ्टर दैट यू मेड दिस सिनॉप्सिस, माइक्रो नोट्स। तो यानी बेसिकली इंट्रोडक्शन तो पता ही रहेगी। ये सब मैरिज बाय परचेस एक बार बस वो याद करना है, और बस एग्जाम्पल, यानी जब भी एंड में क्या, बस एग्जाम्पल 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 रिवाइज करो। यानी बाय 15th of December you are just going to revise examples ही regularly, and even in Jan Feb you can 1 or 2 hours giving for anthro, you can easily again one more time you can revise maximum 1 or 2 hours, provided you must have this thing, micro notes. Along with that you are also having the क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस थिंग। डिपेंड ऑन द आई एम गोइंग टू टेल यू कि कब ये करना है, माइक्रो नोट्स कब बनाना है। क्योंकि क्या है कि उतने टॉपिक्स कवर होने चाहिए। इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। अभी हम जब कल्चर करेंगे, सोसाइटी करेंगे, ये दो टॉपिक कवर होने के बाद उनके माइक्रो नोट्स बन सकते हैं, क्योंकि कल्चर और सोसाइटी के इंटरडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, तब जाके वो कल्चर एंड सोसाइटी के मैक्सिमम कल्चर 2-3 पेज, सोसाइटी 2-3 पेज। तो सिमिलरली हम ऐसे करेंगे, मैरिज इज रिलेटिवली लिंक टू द फैमिली, सो kinship, ये all three aspects are linked, interlinked. So after that, whenever you have to make the micro notes, that I am going to tell you कि okay, you make initially definitely कि वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे, कि बहुत डिटेल्ड ही बनेंगे, but gradually we have to make, because the important कि I'll provide everything. You don't required for you will not require कि any IGNOU material or Ember, Pinath or whatever the other book, नदीम हसनैन जो पेपर 2 के लिए, दोनों भी ट्राइबल और इसके लिए है, तो वो सारी बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड में इवन बिफोर नेक्स्ट ईयर, यानी मेंस के पहले जो भी अपडेटेड केस स्टडीज रहेंगे वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, कि जो अपडेटेड डेटा रहेगा, कुछ डेटा रहेगा कहाँ पे हमें इंक्लूड करना है, क्या करना है, वो सब प्रोवाइड किया जाए। आपको बस क्या करना है कि जो भी आप यहाँ पे लेक्चर में लिख रहे हो, तो वो प्रॉपरली लिखना है। उसके बाद वो घर जाके सबसे पहले नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स ब्रेक के बाद रिवाइज करना है, नेक्स्ट 2 आवर्स, और आंसर लिखना है। तो वो जब रिवाइज करोगे तब अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाना है, जो भी क्लास में लिखा, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते जाना है।
तो इंक्लूड करते जाने की चीजें, जो नई नई चीजें या कुछ जो क्लास में मिस हो गई, तो वो वाली चीजें इंक्लूड करनी। और फिर वीकेंड पे रिवीजन होने के बाद जब बताऊंगा कि हाँ ओके यू कैन नाउ मेक माइक्रो नोट्स ऑन दिस टॉपिक्स, सो दैट विल बी बेसिकली द आइडिया। तो यू अंडरस्टूड कि कैसे नोट्स ये करने हैं, डिटेल नोट्स रहेंगे, यानी क्या क्या रहेगा एंड ऑफ द 15 डिटेल नोट्स रहेंगे, देन डेली डिटेल नोट्स, फिर सिनॉप्सिस रहेंगे, डेली आंसर्स, देन टेस्ट सीरीज, टेस्ट जो सेक्शनल टेस्ट एंड एंड में कॉम्प्रिहेंसिव। एंड दिस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो 15 दिसंबर के बाद होगा, यहाँ पे आपको हर चीज आनी चाहिए। यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट इज लाइक कि ओके यू आर नाउ राइटिंग मेंस, दैट काइंड ऑफ। And definitely, if you do all these aspects, if you do all these aspects properly, then this will be done. And by 15th of December, you will be having everything. Your optional will be done. एंड जब प्री हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, प्री होने के बाद ऑब्वियसली 89 days भी है, तो भी दैट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि इफ यू हैव द सिनॉप्सिस एंड योर ओन हैंड रिटन आंसर्स एंड डिटेल्ड नोट्स, देन what will you require? You just required 15 odd days for revising paper 2, and in paper 1 you required just 30 or 40 days. So ultimately 45 days, and you can do twice a revision, proper twice or thrice revision properly. So this is the crux of the discussion कि I'll give you everything, I'll provide you all the material, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा you can ask me। तो उसके बाद आपको बस ये फॉलो करना है, माइक्रो शेड्यूल फॉलो करना है डेली बेसिस। उसके बाद जो नोट्स ये करना है कि आई विल पुट माय बेस्ट एफर्ट्स, यू आल्सो हैव टू पुट योर एफर्ट्स। सो अल्टीमेटली कि एक्टिव लर्निंग होगी, एक्टिव लर्निंग होगी कि हमें मेंस लिखना है नेक्स्ट ईयर। तो मेंस के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स, ये अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर। सो होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। From tomorrow, we are going to start with anthropology, की meaning scope development, the 1.1, 1. These units we are going to start. And after that, once you understood the basic की anthropology क्या है, anthropology subject कैसे, discipline कैसे ये हुआ, develop हुआ, उसके बाद उसका scope क्या है, almost we discuss the scope, but in proper कि there many thinkers will come, their definition will become like कि अभी तो हमने डेफिनेशन देखी वो एंथ्रोपोलॉजी की, वो एकदम बेसिक डेफिनेशन की, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन। बट देयर विल बी थिंकर्स लाइक क्रोबर इज देयर, टेलर इज देयर, मेलिनोस्की इज देयर, तो उनके डेफिनेशन भी हमें एक बार स्टडी करने पड़ेंगे। तो एक दो डेफिनेशन एंड ऑफ द हमें बस चाहिए तो दो ही डेफिनेशन किसी थिंकर्स के, तो वो वी आर गोइंग टू डिस्कस। आफ्टर दैट कि डेवलपमेंट कैसे, एंथ्रोपोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, एंथ्रोपोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, कि ये सब्जेक्ट कैसे आ गया, और ये कैसे होलिस्टिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और इसका कंपैरिजन विद द अदर डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी से क्या सिमिलर है, सोशियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, हिस्ट्री से क्या सिमिलर है, हिस्ट्री से क्या डिफरेंट है। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। सो एनी डाउट? No, you don't require, you just have to wherever if needed, that's not going to happen because you will get everything, you will get even printed notes also you are going to get कि कुछ एक्स्ट्रा रेफर करना है, I'll provide everything, क्योंकि एक्स्ट्रा कितने बुक्स पढ़ोगे, we have to be focus on the revision aspects and our own notes। जहां पे लगेगा वो बाद में हम वैल्यू ऐड करते जाएंगे, पर अभी अंडरस्टैंडिंग एंड आवर ओन नोट्स। पर उसके साथ साथ अपने पास प्रिंटेड नोट्स, हैंडआउट्स रहेंगे, तो वो रेगुलर मिलते जाएंगे। ठीक है, एनी अदर डाउट? सेल्फ स्टडी में अभी तो आपको बस यही चीज कि जो आज किया है, आज जो लेक्चर में हुआ वो पढ़ना है, और उसके बाद नेक्स्ट डे लेक्चर आने से पहले उसको एक 10-15 मिनट्स में जस्ट गो थ्रू करना है। करंट अफेयर्स में ट्राइबल्स में आएगा, कुछ कुछ नए एग्जांपल्स आएंगे, केस स्टडीज आएंगे, तो करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें है, जैसे ये पूरा एस्पेक्ट इसका ये करंट बेस्ड ही है। अभी SC ST OBC के प्रॉब्लम्स वो तो चेंज ही होते रहे, तो वो सारी चीजें आएंगे, सेफगार्ड्स भी ये हो जाते हैं। उसके बाद जो फॉरेस्ट पॉलिसी,
वो चेंजेस आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें, और ट्राइबल प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स चेंज, वो भी चेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वाले प्रॉब्लम्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और केस स्टडीज बहुत लगेंगी कि सोशो कल्चरल में केस स्टडीज लगेंगी। कोई रिसेंट केस स्टडी रहेगी, किसी थिंकर ने कोई स्टडी किया है, तो वो केस स्टडी हमें लगेगी। तो वो कहाँ से मिलेगी? तो करंट अफेयर्स से। यानी कन्वेंशनल सोर्स से नहीं मिलते वो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने रहते, बट दैट यू डोंट नीड टू वरी, दैट विल बी प्रोवाइडेड इवन आफ्टर दिस मेन, आफ्टर प्रिलिमिनरी यू विल गेट द अपडेटेड केस स्टडी की। कोई अच्छी केस स्टडी है कि अरे ये हम कोट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, दैट यू विल गोइंग टू गेट। और कुछ एनी डाउट? तो ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। दिस वीक वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द कि एंथ्रोपोलॉजी की सारी कॉन्सेप्ट्स, यानी बेसिकली कि एक फैमिली हो जाए ऑप्शनल को। So we can start with the next week, or on Friday we'll start with the anthropological theory, because once you start with the macro target, then our important aspects start कि डेली नोट्स है। दिस वीक वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेनली कि जो हमने माइक्रो टारगेट सेट किए कि वो कैसे अचीव हो जाए, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वो भी नोट्स बनाओगे उसके बाद वो आपको दिखाने पड़ेंगे कि कैसे बनाए हैं। तो ऑटोमेटिकली विल कीप इम्प्रूविंग ऑन दैट। एंड नेक्स्ट वीक से एक वंस यू स्टार्ट विद द थियरीज, देन ऑब्वियसली कि फिर नो लुकिंग बैक। How to till 15 December, how to be hard work, and then you definitely cover your option. Any other? Any doubt, online student? ठीक है, then we'll stop here. Tomorrow we are starting with the meaning, scope and development of the anthropology. Thank you.